Okay, MCOM Part 2, Semester 4, Advanced Financial Management Accounting of Mumbai University NEP के हिसाब से. Welcome back. Chapter 3, Part 2. Last video we have seen the various types of investment options, capital budgeting, foreign capital budgeting options. दो या तीन देखे हम लोगों ने. कौन से देखे? FCCB, that is Foreign Currency Conversion Bonds, and deposit receipt, ADR and GDR. Now we are coming to external commercial borrowings. As the name indicates, क्या किया आपने? Borrowings ली है, लोगों से लोन लिया है. When Indian business borrows money from overseas sources in the form of bonds, loans or other financial instruments, right? This is referred to as ECBs. ठीक है? It can be utilized for financing number of things such as business expansion, asset acquisition, debt repayment, कुछ भी, है ना? पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जब फॉरेन से लोन लेते हो, that is known as external commercial borrowings, ECBs. Okay? Foreign banks, international financial institutions and overseas subsidiaries of Indian business are just few of the places where one can get ECBs. Okay? Rupee denominated loans which are paid in back in rupees, Indian rupees, or foreign currency denominated loans which are paid back in foreign currency are two possible forms of ECBs. Okay? The RBI regulates the ECBs and place restriction on how much ECB Indian enterprises can acquire. देखो, आप अगर unnecessary लोन बढ़ाते हो तो देश का पैसा बाहर जा रहा है, देश के ऊपर लोन आ रहा है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों ने सीखा हुआ है, राइट, इकोनॉमिक्स में, राइट. उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन बोरोइंग्स भी एक पार्ट है. तो आरबीआई विल सेट अ लिमिट हाउ मच यू कैन टेक द लोन. डन. ओके. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे आरबीआई के पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के हिसाब से, एंड द मास्टर्स डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, trade credits and structure obligations master direction, the ECBs are subject to RBI regulation. The minimum maturity time and maximum all-in cost ceiling, the approved and non-permanent end users and other requirements should be followed by ECBs. Okay. ECB में क्या क्या आता है? तो कमर्शियल बैंक लोन आप ले सकते हो, बराबर. बायर्स क्रेडिट आप ले सकते हो, मतलब उधारी पे माल ले सकते हो. सप्लायर्स क्रेडिट, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लोटिंग रेट नोटिस एंड फिक्स्ड बॉन्ड्स, credit from official export credit agencies and borrowing from IFCIs या ADPs. Done. Eligibility criteria, आप borrower हो, बराबर है, तो borrower को criteria क्या है? Obviously he or she should be registered person, बराबर. इंडियन कंपनी हो सकती है, स्मॉल और लार्ज, doesn't matter. लेंडर, सामने वाली बैंक आपकी होनी चाहिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी होनी चाहिए जो आपको पैसा देने को तैयार है. मिनिमम बोरोइंग्स 10 मिलियंस और इक्विवेलेंट उसके मल्टीपल्स में होगा. ओके. मैच्योरिटी टाइम 3 से 10 साल के बीच होता है. टाइप्स ऑफ ECBs, फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स. ओके. मेरिट्स क्या है? आपको पैसा चाहिए, मिल गया, है ना. अपॉर्चुनिटीज टू बोरो, ECBs प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बोरो अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, लो इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी. डन. डीमेरिट्स क्या है? एक्सचेंज रेट रिस्क होगा, ऑब्वियसली होगा. सोवेरिन रिस्क होगा, यस होगा, क्योंकि बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं. क्रेडिट रिस्क होगा ही होगा. रेगुलेटरी रिस्क, पॉलिटिकल अनडिस्टर्बेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स. यूरो बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर 4. तो एज द नेम इंडिकेट्स, ये यूरो करेंसी पे होगी, यूरोपियन कंट्रीज से ली गई होगी. An euro bond is a debt capital instrument that is sold in multiple countries of issue and is then traded by market participants in multiple international finance centers. It is issued in euro currency by a syndicate of issuing banks and securities houses and is distributed globally. एक बैंक नहीं दे रही, it is a group of banks. Depending on the currency in which the issuance is issued, the Eurobond market is separated into different sectors. Similarly, sterling issuance are known as euro sterling bonds, whereas US dollar euro bonds are frequently referred to as euro dollar bonds. In 1960, the prefix euro was initially used to US dollars deposit in continental Europe. Any deposit of the currency outside the nation where it is issued is now referred to as euro deposit. Okay, it is not just used in Europe. For historical reason and also due to an importance of US economy and investor base, the major currency in which euro bonds are denominated has always been US dollars.
यूरोबॉन्ड मार्केट इज फ्री मार्केट विदाउट एनी रेगुलेशन, हेंस ये ऑब्जेक्टिव में आ गया या इंपॉर्टेंट आ गया कि यूरोबॉन्ड मार्केट इज फ्री मार्केट. ओके, हेंस sometimes it is known as self-regulated market. Euro market is also known as dash self-regulated market. Okay, types of euro bonds, these are the important things to be remembered. जब भी आंसर्स लिखोगे तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए. Okay, the euro bond market has witnessed the number of innovation. Borrowers have issued bonds with different features. Fixed rate bond ये है, fluctuating bond ये है, fluctuating नाम से ही पता चल रहा है, the rate which fluctuate which changes as per the time. सिंकिंग फंड बॉन्ड, डूबने वाले, यानी कि एक टाइम में आपने फिक्स कर लिया, फिर फेस वैल्यू के हिसाब से आपकी लोन रिपे होती रहेगी. जीरो कूपन बॉन्ड, बड़ा, दिस बॉन्ड्स डू नॉट टेक रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, दे सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड मैच्योर एट फेस वैल्यू. कन्वर्टेबल यूरो बॉन्ड्स, तो ऑब्वियसली हम लोग ने एसपी में सीखा हुआ है अलग अलग चीजें, बराबर, तो शेयर्स में कन्वर्ट कर पाओगे. कोलेबल हो गया, कॉलेबल यूरो बॉन्ड्स, जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तब मांग लेके और देना पड़ेगा बिफोर मैच्योरिटी, ऑब्वियसली. पुटेबल यूरो बॉन्ड्स, नेम से पता चल रहा है, दिस बॉन्ड्स गिव इन्वेस्टर द ऑप्शन टू सेल द बॉन्ड्स बैक टू द इश्यूअर बिफोर मैच्योरिटी. यूरो मीडियम टर्म बॉन्ड 1 से 10 साल के लिए है. हाई यील्ड यूरो बॉन्ड, इसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा होगा ऑब्वियसली, बराबर. देन यूरो कमर्शियल पेपर्स, नॉर्मली आपका जो उधर का चलता है वो. दिस शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी मैच्योर्स पीरियड अप टू 270 डेज, यानी 1 साल के अंदर. दे आर इशूड टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स. असेट बैक यूरो बॉन्ड्स, यानी कि नाम से पता चल रहा है अपने को कि हम लोग असेट के लिए या असेट को गिरवी रख के. दे आर सिक्योर्ड बाय पुल ऑफ असेट्स सच एज मॉर्गेजेस, क्रेडिट कार्ड्स रिसीवेबल्स और अदर फाइनेंशियल असेट्स. ओके, मेरिट्स क्या है? लेस डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक एंड कैपिटल मार्केट. बेटर ट्रेड, बीटर हो गया, आज सच में कुछ लफड़ा है रे, किसी की नजर लग गई अपने को. बेटर ट्रेडेड प्राइसेस, ओके, अपीलिंग इंटरेस्ट रेट एंड कस्टमाइज टू द बॉन्ड कंडीशंस. डीमेरिट्स क्या है? करेंसी फ्लक्चुएशन इफेक्ट करेगा आपको, इंपैक्ट ऑन मार्केट वैल्यू होगा, क्रेडिट रिस्क वही चीज पुरानी वापस, लेस लिक्विड एंड सब्जेक्ट टू लीगल रिस्क. ओके, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, क्या है इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर? तो ये चीज इंडिया में बहुत अच्छे से चली. गिफ्ट सिटी आपने सुनी होगी, है? तो वो वही चीज है. कहाँ पे है? आई गेस सूरत में है या बड़ौदा में है, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है. इसके ऊपर मेरा काम भी चल रहा था रिसर्च पेपर के लिए, बाद में रुक गया. द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर रेफर्स टू द डेडिकेटेड हब where financial services are provided to global market, acting as a gateway of cross-border investment, trade and capital flow. From Indian perspective view, the establishment of IFC holds significant strategic importance in context of economic growth, ग्लोबलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन. एक ऐसी जगह जहां पे सारे फाइनेंस सर्विसेज मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं. ओके, एज इंडिया कंसिडर टू राइज एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, the need for the IFC becomes increasingly evident in enhancing the country's competitiveness in global financial ecosystem. An IFC in India would not only attract foreign investment but also foster a conducive environment. गिफ्ट सिटी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? ये कुछ चेंज किया है क्या? ओके, गिफ्ट सिटी सर्च मारना, आपको मिल जाएगा वो. इंटरनेशनल कैपिटल इनफ्लो, financial innovation and expansion of financial service. Moreover, it would help in easing the process of Indian business to access global funding, thereby boosting infrastructure development, corporate growth, and economic diversification. With India's growing economic status, the development of an IFC could position the country as a key player in international financial market. इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल इकोनॉमिक कंडीशन आप देख रहे हो कैसी है, राइट. आरबीआई ने थोड़ा सा दिमाग लगा के इसके ऊपर कुछ करे तो शायद वी मे बूस्ट अगेन. With India's growing economic status, the development of IFC could position the country as a key player in हो गया पढ़ के driving sustained economic prosperity and further strengthening its role in global economy. Under the direction of Oxford International Group Chairman Shri Percy Mistry, the Minister of Finance, Government of India established a high-power expert committee known as Percy Mistry Committee on making Mumbai as an international financial center. On Feb 2007, the committee delivered its report to Indian Government Ministry
ऑफ फाइनेंस, 2007 की बात है। ओके, इंडिया आज़ाद होने के पहले की बात है। द कमिटी रिकमेंड, जोक्स अपार्ट, देखो लेकिन इंडिया कर रही थी, है ना, प्रोग्रेस हम लोग बहुत सारी फील्ड में कर रहे थे। जो बताया गया था कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, वो गलत था। द कमिटी रिकमेंडेशंस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट एज स्टेट गवर्नमेंट। द फॉलोइंग वेर द जनरल सजेशंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओपन इंडियन रूपी बॉन्ड मार्केट। जैसे हम लोग ने देखा कि अलग अलग कंट्री अपने बॉन्ड मार्केट डाले, हम भी वैसे बॉन्ड इशू करें, अपने से गरीब देश को दे सकते थे और ले सकते थे, है ना, ये स्कोप था। Creation of spot currency market, financial market integration that shift away from the existing segmented approach, shift from the present over perspective rule based regulation towards principle based regulation, to incur general sales tax on economic services only other than tax to be cancelled, to allow the international law firms to work in the country। ये सारे उसके पीछे के स्कोप्स थे या जनरल सजेशंस थे जो कमेटी ने दिए थे। पर्सी कौन है पर्सी? पर्सी मिस्त्री। India has been significant consumer of international finance service due to its status as one of the आज मूड नहीं हो रहा है, world's largest and fastest growing economy. According to Percy Mistry Committee report, even with conservative projection, India's consumer and businesses will buy around $50 billion of IFC by 2015, with the potential surplus of $120 billion by 2025. और आई होप कि आप लोग अवेयर हो कि इंडिया ने अलग अलग लैंडिंग कितनी की है, जो आई गेस 10 टाइम्स या मेजॉरिटी टाइम्स बढ़ गई है कम इन लास्ट 12 years. The government of India thus operationalized India's first IFC service center. Benefit क्या होगा? There are multiple direct and indirect benefit of IFCs. Some of the major benefit are as under opportunity to professional, बराबर है, जो IT वाले हैं उनको भी काम मिल जाएगा, फाइनेंस वाले हैं उनको भी काम मिल जाएगा या मिल गया, यू कैन से। प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंटेड पीपल, स्टॉप ब्रेन ड्रेन, लोग बाहर क्यों जाएंगे जब अपनी कंट्री में अलग अलग करियर ऑप्शंस मिल रहे हैं। Bring back financial services, बराबर है, and trading of derivatives. So these are the various activities. Constituents क्या क्या है? तो develop infrastructure, political stability जरूरी था, strategic location, एक अच्छा लोकेशन जहां से सबको आवन जावन ईजी पड़े और नेटवर्क बिटवर्क का भी प्रॉब्लम ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड स्टेबल इकोनॉमी। दिस वर द बेसिक नीड्स फॉर IFC। अब आया गिफ्ट सिटी। ये IFC के अंडर गिफ्ट सिटी बनी इंडिया में पहली, गुजरात में। ओके, आई एम फॉरगेटिंग द लोकेशन, बड़ौदा या अहमदाबाद। आप लोग सच मारो, आप लोग क्या करोगे, सब कुछ मैं ही करूंगा तो, है ना। ओके, तो IFC क्या है पता चल गया। तो इंडिया ने गिफ्ट सिटी रेज की, कहां पे रेज की? गुजरात। ओके बस इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ये समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज क्वाइट लॉजिकल एंड सिंपल। डन, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। कुछ कमेंट भी मारा करो, कितने आलसी हो, जाके सिर्फ 1 महीना पीछे, 1 महीना भी नहीं 25 दिन पीछे जाके देखो। ओके, मतलब अप्रैल के पहले 15 17 18 दिन, इतने कमेंट, इतनी लाइक्स, इतना इंटरैक्टिव चैनल बना था, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन की एग्जाम थी। तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन आलसी है, सुस्तड़ है? नहीं ना, पढ़ो पढ़ो, जरा इंटरेक्ट करो, कमेंट मारो, लाइक करो। सुपर क्या है वो, सुपर चैट, सुपर सुपर कुछ आया हुआ है, हाइप का ऑप्शन आया हुआ है, उन पे यूज करो, उन सब ऑप्शंस का फायदा होगा ना, अपना चैनल ऊपर आएगा तो एमकॉम वालों का भला तो होगा। चलो टाटा, सी यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग।